थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इफ देयर इज एनी इशू दैट यू फेस एट एनी पॉइंट इन टाइम, प्लीज message me through the chat window and I will be quickly addressing your issue, guys. Okay. A little bit about me and our company. My name is Srinivas P. Kulkarni, and I am the learning and development specialist here at Skillifant. Guys, we at Skillifant are on a mission to provide a platform for every individual to learn through fun, engaging, and innovative methods. We focus our efforts on building and conducting personalized learning and development modules and mentorship plans for individuals, teams, and organizations. To learn new skills every day, I would recommend you to follow us all on the social media platforms that we have. You can see all our social media platform handles on the screen right now, my friends. Something very important, I will be talking to you all in English and Hindi. दोस्तों मैं English और Hindi दोनों languages में बात करूंगा. A few tips before we proceed further, guys. If you are new to Zoom, don't worry. It's really simple to use. All you need to do is focus on listening, watching, and learning, guys. I will guide you through relevant features as and when required. For example, the chat feature, the question and answer feature. There is also an opinion poll feature here, guys. So whenever I have to ask you any questions or take your opinions, I will let you know how to use that feature. Okay. Another thing that is very important, all of you will be on mute throughout the session. Any doubts or questions you have, you can send them using the chat window. We will take all your questions during and after the end of the session and get your doubts cleared, my friends. Okay. There will be times when I will ask you to interact using the chat window, and I recommend you interact as much as you can to make sure that you learn effectively, my friends. And the most important thing, this chat is going to be, or this webinar is going to be recorded, my friends. Okay. As I said, this is a three-part series. As I said, this is a three-part series where in the first webinar, we discuss tips to make sure that we have an infinite mindset. Tips like upskilling ourselves, being a good listener, helping each other. I am sure you have already started implementing these to develop yourself and have an infinite mindset, my friends. Okay. That's what we learned in the first one. Okay. Let's move to the next one. Now, adapting an infinite mindset actually broadens our vision, and that is where we can start looking for opportunities. दोस्तों, जब हम हमारी सोच को बदलते हैं, जब हम हमारी सोच को अनलिमिटेड करते हैं, तब हमें हमारे आजू बाजू में होने वाली अपॉर्चुनिटीज को हम देख सकते हैं. आजू बाजू में जो मौके होते हैं हमारे पास, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका दोस्तों, हम उन मौकों को देख सकते हैं. अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, हाउ डू वी आइडेंटिफाई दीज अपॉर्चुनिटीज एंड हाउ डू वी ग्रैब देम. तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कैसे करें, और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम इनको ग्रैब कैसे करें. तो दैट इज व्हाट वी विल लर्न इन द second webinar. That is what is our second webinar all about, which is cashing in on the opportunities, guys. Yeah, we will learn how to identify all the opportunities. हमारे आजू बाजू में जो मौके हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये हम देखेंगे. उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इन मौकों को कैश इन कैसे करना है, ग्रैब कैसे करना है. हाउ टू ग्रैब दीज अपॉर्चुनिटीज is something that we will also see, guys. Yeah. So this is about today's webinar, guys. Now the point is, once we've understood how to develop an infinite mindset, एक बार हमने समझ लिया कि हमें हमारी सोच को कैसे बड़ा करना है,
उसके बाद जब हम आज जानेंगे कि हमारे आजू बाजू में जितने भी मौके हैं कैसे उनको कैश इन करना है, कैसे उनको ग्रैब करना है, तो इसके बाद जो हमारा तीसरा वेबिनार है उसमें हम जानेंगे हाउ टू एनहांस आवर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, वी विल लर्न हाउ टू मैक्सिमाइज आवर प्रोडक्टिविटी गाइस। Yeah, so that's what we will learn in the third one. So for a wholesome learning, make sure that you attend the third webinar as well, guys. Yeah, understand one thing, all this knowledge will make you a tiger. ये knowledge आपको एक tiger बनाएगा, and it will help you to pace ahead in the times that are coming ahead. It will help you, my friends. Okay, so are you all with me? If you all are with me, just go to the chat window and quickly say yes so that we can go ahead, guys. Superb. I can already see thoughts flowing. Okay. Perfect. So without wasting any further time, let's begin, guys. Let's begin this journey on how to cash in opportunities. Okay. So now let us understand the agenda and what do we take away from today's seminar. देखते हैं कि आज हमें सीखना क्या है और इस ये हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। So the first thing that we will look at is the poor habits that need to be identified. वो सारी आदतें जो हमें आइडेंटिफाई करनी है और अवॉइड करनी है, मतलब वो सारी आदतें जो हमें देखनी है और अवॉइड करनी है, क्योंकि ये वो आदतें हैं, दीज आर द अपॉर्चुनिटी, दीज आर द हैबिट्स, आई एम सॉरी, दैट स्टॉप अस फ्रॉम कैशिंग इन ऑन द अपॉर्चुनिटीज. These are the habits that stop us from grabbing the opportunities, guys. Okay, so once we learn about what are these habits, the second thing that we will learn is a golden mantra that will help us to maximize our potential to grab the opportunity. इसके बाद हम एक बहुत ही बढ़िया मंत्र देखेंगे दोस्तों, शायद आपने ये कभी पहले सुना नहीं होगा, तो मैं आपको बताऊंगा ये गोल्डन मंत्र के बारे में. और उसके बाद द थर्ड थिंग दैट वी विल लर्न इज हाउ टू मैक्सिमाइज आवर पोटेंशियल बाय प्रैक्टिसिंग 7 एलिमेंट्स. 7 ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा जिनको अगर आप पॉजिटिवली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप नेगेटिविटी से दूर होकर पॉजिटिविटी में जाएंगे. सिंपल एग्जांपल, बहुत सारी बार ऐसे होता है कि कोई एक मौका होता है जो हमें पता नहीं होता कि है, और जब वो मौका हमारे हाथ से चले जाता है तब हमें पता चलता है कि ओ अरे मेरे पास ये भी मौका था, शायद मैं ये कर सकता था. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब उनको पता चलता है कि वो मौका उनके हाथ से निकल गया है तो वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, वो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं. तो ये 7 एलिमेंट्स जो मैं आपको बताऊंगा, ये 7 चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, पहली बात तो वो आपको डिप्रेस होने नहीं देंगे और आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे दोस्तों. ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है वो आदतें. इसके पहले कि हम ये आदतें देखें, चलिए हम देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग. एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस गाइस to do all those things that we want or wish to do. दोस्तों हर रोज हमारे पास एक मौका है. हर वो चीज जो हम हमेशा करना चाहते थे या हर वो चीज जो हम हमेशा करने की सोचते थे, दोस्तों मैं तो बोलता हूँ हर रोज हर दिन नहीं, हमारे पास तो हर मिनट हर सेकंड एक मौका होता है दोस्तों. हर मिनट एक हर सेकंड एक मौका होता है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास, हमारे पास, आपके पास क्या है वो मौके. ठीक है, तो मेरे कुछ दोस्त हैं, जब हम बातें कर रहे थे तो उन्होंने भी मुझे ये सारे क्वेश्चंस पूछे, तो आज मैं मेरे दोस्तों के कुछ क्वेश्चंस आपको पूछूंगा और हम सब मिलके उनको बताएंगे कि उनको करना क्या है लाइफ में. ठीक है, तो ऐसे मेरा एक दोस्त है शेखर, इज अ बिजनेसमैन, अ वेरी एम्बिशियस पर्सन. बिजनेसमैन है वो, बहुत ही एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा सोचता है, हमेशा कुछ ना कुछ अलग करने की सोचता रहता है. ठीक है, तो what are the opportunities that शेखर has every day? क्या वो मौके हैं या कौन से वो मौके हैं जो शेखर के पास हर रोज, हर मिनट, हर पल है? मैं चाहूंगा कि आप लोग चैट विंडो ओपन करके हमें बताइए कि कौन से ऐसे मौके हैं जो हमारे पास रोज होते हैं. आपको 1 मिनट दूंगा, जो भी मौके आपको याद आते हैं आप प्लीज चैट विंडो में लिखिए.
जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास आज एक मौका है, आज ये लॉकडाउन सिचुएशन है, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, तो मेरे पास एक मौका है, मेरी वाइफ को हेल्प करना है एक घर साफ करने में। तो ये एक मौका है आज, ये एक अपॉर्चुनिटी है। ऐसे आपको क्या लगता है कि शेखर के जीवन में क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज है आज की डेट में? शेखर जो एक बहुत ही एम्बिशियस बिजनेसमैन है, उसके जीवन में। तो मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट, आप प्लीज बताइए कि क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज है? Thank you so much. Great to see so many opportunities that we can suggest to Shekhar. You know, not only Shekhar, guys, but all of us have similar opportunities every day. All of us. So I have also listed down a few that you have already mentioned. Okay. What we will do is we will quickly check, what are the opportunities that Shekhar, you, me, a businessman, someone who's a housewife, someone who's working in a company have on a daily basis. क्या है वो मौके जो हमारे पास है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला मौका जो मैंने लिखा है, शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है, which is starting a new project. ठीक है? शेखर एक एम्बिशियस बिजनेसमैन है, एंड आई एम श्योर उसके दिमाग में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स घूमते होंगे। ठीक है? सो ही डेफिनेटली हैज एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट ऑन एवरी डे। हर रोज उसके पास एक मौका है एक प्रोजेक्ट चालू करने का। फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम। ठीक है? शेखर के पास एक मौका है कि एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाए वो। ठीक है? एक अच्छी ऐसी टीम बनाए जिससे उसका जो बिजनेस है वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाए दोस्तों। ठीक है? तीसरा मौका, लर्निंग टू प्रिपेयर अ न्यू डिश। सब आज घर पे है दोस्तों, आज के टाइम में। तो ऑब्वियसली हमें भी हम में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको कुकिंग आता होगा, तो उनके लिए एक मौका है कि वो कोई नया डिश सीखे। अगर नहीं आता है तो आज शुरुआत कर सकते हैं, कोई एक डिश बनाने को, एकदम छोटी सी सिंपल सी डिश भी बनाने को सीख सकते हैं। तो ये भी एक मौका है उनके पास। ठीक है? दोस्तों यही वो टाइम है जब हम हमारे लव्ड वन से, हमारे नियर और डियर वन से बात कर सकते हैं, बैठ के हमारे विचार उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि होता यह है कि अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में हमें टाइम नहीं मिलता दोस्तों के साथ, हमारे घर वालों के साथ, हमारे चाहने वालों के साथ डिस्कस करने के लिए। सो आई वॉन्ट तो रिकलेक्ट सारी मेमोरीज जो होती है हमारी, उनको रिकलेक्ट करके उनको एंजॉय करना, यही वो टाइम है। और हर रोज मिलता है ये मौका हमें। लास्ट, एक्सरसाइजिंग इन द मॉर्निंग। ठीक है? सिंस मोस्ट ऑफ अस आर वर्किंग फ्रॉम होम, वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग इन द मॉर्निंग। बहुत सारे लोग होंगे जो शायद एक्सरसाइज नहीं करते होंगे, तो उनके लिए एक मौका है कि एक्सरसाइज करना चालू करें। बहुत सारे होंगे जो एक्सरसाइज करते होंगे लेकिन आप जिम नहीं जा पा रहे हैं, तो आपके पास एक मौका है कि आप एक्सरसाइज करना चालू कर दीजिए। ठीक है? So my question now, the biggest question that I have now is, there are so many opportunities that we have on a daily basis. So why is it that we miss out on all such opportunities? Why is it that we fail to grab these opportunities? क्यों हम इन मौकों को, हम ये जो अपॉर्चुनिटीज है इनको ग्रैब नहीं कर पाते? या तो इस प्रश्न का जो उत्तर है अब हम जानेंगे। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है वो आदतें। ठीक है? तो ये जो होता है हमारे साथ, ये जो मौके हम मिस कर जाते हैं, दिस हैपेंस बिकॉज मोस्ट ऑफ अस knowingly और unknowingly have two habits, दो आदतें दोस्तों जिनकी मैं आज बात करने वाला हूं। ठीक है? यस, यू हर्ड इट राइट। These two habits stop us from grabbing any and every opportunity that comes our way. जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, इन आदतों की वजह से हम उसे ग्रैब नहीं कर पाते हैं। ठीक है? तो देखते हैं क्या है वो पहली आदत। So the first one is perfectionism, yeah, or being perfect all the time. Being perfect all the time. थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में।
अब ये जो लोग होते हैं जिनको ये परफेक्शनिज्म की आदत होती है, ठीक है, इनका थॉट प्रोसेस कैसा होता है कि भाई मैं कोई भी एक्शन तभी लूंगा जब मैं फुल्ली कन्विंस्ड हूं, पूरी तरह से मैं कंफर्म है मेरे दिमाग में कि ये 100% करेक्ट है और ये रेडी है, अब मैं रेडी हूं इस काम को करने के लिए। ये लोग 100% के नीचे सोचते ही नहीं है। जो भी 100% के नीचे होता है तो इनको लगता है कि ये बहुत ही गलत हो गया और ये बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत क्लियर होता है इनके दिमाग में, एक मॉडल होता है कि जो भी करूंगा 100% सच 100% करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ठीक है, अब पंगा ये होता है कि बिकॉज इनके पास बहुत सारे विचार आते रहते हैं, इनकी ये जो आदत है ये उन विचारों को डिसीजन में बदलने नहीं देती है, एंड दैट इज द रीजन ये जो आदत होती है ये डिसीजन मेकिंग को डिले करती है। ठीक है, थॉट्स तो बहुत सारे होते हैं, मॉडल तो दिमाग में बहुत सारे हैं, बट हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते क्योंकि आदत ये होती है कि करूंगा तो 100%, अदरवाइज नहीं करूंगा। इसीलिए डिसीजन मेकिंग जो है इनका हमेशा डिले हो जाता है। तो ये है पहली आदत, परफेक्शनिज्म। थोड़ा और जानेंगे इस आदत के बारे में आगे जाके। चलिए देखिए दूसरी आदत क्या है। दूसरी आदत है टुडे इज टुमारो, आज कल है इनके लिए। आज आज नहीं है, आज कल है इनके लिए। ठीक है, ये वो लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि हमें चीजों को डिले करना चाहिए, क्योंकि हमें अगर हम वो चीज करेंगे तो हमें 100% गारंटी चाहिए। 100% गारंटी चाहिए हमें कि हमने ये जो चीज की है इसकी 100% सक्सेस ही आएगा। इसीलिए ये लोग शुरुआत करने में देरी कर देते हैं या शुरुआत ही नहीं करते हैं। तो पहली जो आदत है उसमें जब तक 100% नहीं होगा तब तक काम चालू नहीं करूंगा, डिसीजन ही नहीं ले पाते कि कब चालू करना है। दूसरी जो आदत होती है उसमें मैं काम चालू करने में इसके लिए देरी कर रहा हूं क्योंकि मुझे 100% गारंटी दो कि जब मैं चालू करूंगा तब ये सही होगा, वरना मैं करूंगा ही नहीं। ठीक है, सो आई वांट यू टू टेक अ मोमेंट, रिवाइंड योर लाइफ and think if you have missed out on any opportunity in your life because of either of these habits. मैं चाहूंगा कि आप एक मोमेंट लीजिए, राइट, अपनी लाइफ को रिवाइंड कीजिए और देखिए कि कभी ऐसा हुआ है कि या तो दोनों आदतों की वजह से या किसी एक आदत की वजह से आप जो है मौके को गंवा चुके हैं या आपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाए। ठीक है, चैट पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप कहीं अपने पास एक नोटपैड या एक पेपर पे लिख के रखिए। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको मदद की जरूरत है, तो मैंने सोचा कि उन दोस्तों के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके सामने रखूं और हम सब एज अ ग्रुप उन क्वेश्चंस के थॉट्स जो है उनको शेयर कर पाए, आप अपने ओपिनियंस मुझे दे पाए, आप अपनी राय मुझे दे पाए। ठीक है, तो जैसे हमने शेखर के बारे में देखा, चलिए देखते हैं मेरे दूसरे दोस्त के बारे में। एक और दोस्त है मेरा, ठीक है, जिसका नाम है करण। या अगर इस ग्रुप में अभी कोई है जिसका नाम करण है, सॉरी, लेकिन ये मेरे दोस्त के बारे में है। ठीक है, चलो तो देखते हैं कि करण का क्या है। अब होगा क्या, ये जो करण का जो सिचुएशन है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मेरे जो दो ओपिनियंस है मेरे हिसाब से वो मैं आपके सामने रखूंगा और फिर मैं आपको टाइम दूंगा कि आप अपना ओपिनियन मुझे उस पर बताएं। ठीक है, अब ये हुआ क्या है, इट हैज बीन 15 days since Karan, a professional photographer, has been asked by a potential client about a portfolio shoot. Every time they talk about this, Karan keeps telling him that he is still preparing. Eventually, Karan loses out this opportunity. ठीक है, करण एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। 15 दिन हो गए, उसके क्लाइंट ने उसको फोटोशूट के बारे में बताया था। उसके क्लाइंट की शादी थी तो उसको शूट करना था पोर्टफोलियो, तो उसने करण को बताया। अब इस चीज को हो गए 15 दिन।
हर बार जब क्लाइंट करण को पूछता था कि भाई कब करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो करण उसको बोलता था हाँ हाँ मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ सर, आप टेंशन मत लीजिए। इवेंचुअली जो है, जो क्लाइंट है वो फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने करण को बोल दिया कि भैया तुमसे पोर्टफोलियो नहीं करवा। व्हाई डू यू थिंक करण वाज सेइंग दैट ही वाज स्टिल प्रिपेयरिंग? आप क्या लगता है आपको कि क्यों करण ऐसे बोल रहा था, कि बार बार ऐसे बोल रहा था कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ? ठीक है, is it because Karan feels that by saying so the potential customer will feel that he is a real busy man? करण ऐसे बोल रहा था क्योंकि करण को लगता था कि अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो मेरे कस्टमर को लगेगा कि हाँ ये बहुत बिजी है। क्या इस रीजन से बोल रहा था, या करण ऐसे बोल रहा था कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ क्योंकि करण हमेशा बहुत सारा टाइम लेता है टू प्लान, as he wants things to be 100% perfect before he begins? अब मैं एक ओपिनियन पोल आपके सामने पेश करूंगा जिसमें ये दोनों भी ऑप्शंस होंगे। मुझे सिर्फ आपका ओपिनियन चाहिए, आपको चैट विंडो पे टाइप करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा अभी आपके स्क्रीन पर और मैं आपको दूंगा 1 मिनट इसका, सॉरी 2 मिनट इसका आंसर देने के लिए। ओके, मुझे आंसर्स आना चालू हो गए हैं। I have already received 12 out of 56 people who have answered. Brilliant. Very nice. क्या बात है दोस्तों, अपने आंसर्स ऐसे ही फ्लो करते रहिए। एक्सलेंट। बहुत बढ़िया दोस्तों, थैंक यू सो मच कि आप सबने आंसर दिया। सो द रीजन आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन, ठीक है, is because I want to discuss a little bit about how these perfectionists think and behave. ठीक है, ये तो परफेक्शनिस्ट है ना करण, तो देखते हैं कि हाउ डू दीज परफेक्शनिस्ट थिंक एंड बिहेव। ठीक है, लेट्स गो लिटिल अहेड नाउ। ठीक है, तो परफेक्शनिस्ट ऑलवेज थिंक दैट दे हैव टू वेट बिकॉज वॉट एवर दे नीड टू डू हैज टू बी परफेक्ट। These people have the same expectation from the people around them as well. तो ये जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, ठीक है, ये हमेशा रुकते हैं क्योंकि इनको पता होता है कि जो भी करना है वो परफेक्ट करना है, और इनकी अपने सामने जो लोग होते हैं उनसे भी यही एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक है, सो लेट अस लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ व्हाट दे वेट फॉर। क्या क्या चीजों में वो वेट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे वो वेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, perfectionist waits for a perfect decision. The perfectionist waits for a perfect job, a perfect book, perfect movie, perfect time, perfect travel plan, perfect decision. ठीक है, सोचते रहते हैं और जब तक सही सही समय नहीं आता तो डिसीजन नहीं लेते हैं तब तक। ठीक है, परफेक्ट जॉब, इनके थॉट्स बहुत क्लियर है इनके जॉब के बारे में गाइस, ये बहुत क्लियर रहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा जॉब चाहिए
या मुझे ऐसी कंपनी में जॉब करना है जहाँ पे मुझे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मिले, मैं जो चाहता हूँ उस दिन मुझे छुट्टी मिले, कंपनी मेरी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर ले और कंसिडर कर ले, मैं ऐसी ही जगह नौकरी करने जाऊंगा। ठीक है, मैं दुआ करता हूँ कि उसे ऐसी कंपनी मिले, बट अगर नहीं भी मिलती है तो आज आज की डेट में हम सब नौकरी करते हैं, कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि सब कुछ परफेक्ट होता है दोस्तों। ठीक है, परफेक्ट बुक, ढूंढते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, हजारों बुक्स पढ़ी होती है, लेकिन ये सोचते रहते हैं कि कौन सी परफेक्ट बुक है मेरे लिए, डिसीजन ही नहीं ले पाते कि ये पढ़ूं या वो पढ़ूं। परफेक्ट मूवी, सिमिलरली बहुत सारी मूवी की सीरीज पढ़ी होती है, बट ये हमेशा कंफ्यूज रहता है कि कौन सी मूवी देखूं मैं आज। अगर आप मुझे पूछोगे ना दोस्तों, तो मेरे पास 1 घंटे का फ्री टाइम है, तो मैं तो भैया जो भी मूवी मिलेगी वो उठाऊंगा और सीधा देखने चालू कर दूंगा। यू नो मेरे लिए ये परफेक्ट मूवी वगैरह कुछ नहीं है, वो बस टाइम पास है 1 घंटे का जो मुझे करना है, बट इनका वैसा नहीं होता। ठीक है, परफेक्ट टाइम, ये जो लोग होते हैं ना, ये परफेक्ट टाइम के लिए रुकते हैं। ठीक है, कोई कोई तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि पंडित जी से मुहूर्त वगैरह निकलवाते हैं। ठीक है, और अगर पंडित जी ने बोल दिया कि भैया परफेक्ट टाइम अभी नहीं है, 1 महीने के बाद है, तो उस काम को शुरू करने का डिसीजन भी नहीं लेंगे, वो 1 महीना वो डिसीजन भी टाल देंगे और बोल देंगे नहीं भैया मुझे तो लेना ही नहीं है ये, मतलब मुझे तो क्या बोलते हैं उसको, ये काम शुरू ही नहीं करना है बाबा। परफेक्ट ट्रैवल प्लान, ठीक है, ऑल ऑफ अस सिटिंग हियर और अदर मोस्ट ऑफ अस सिटिंग हियर, यू नो प्लान टू गो टू आवर फेवरेट डेस्टिनेशन। हम सबका फेवरेट डेस्टिनेशन एक ही है हम यंगस्टर्स का, गोवा। आप अग्री करोगे, गोवा। ठीक है, तो कुछ साल पहले मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने भी प्लान किया था कि हम गोवा जाएंगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि हम अभी भी प्लान कर ही रहे हैं दोस्तों। वी आर स्टिल प्लानिंग, एज फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट बिफोर द लैंड इन गोवा। ठीक है, उनको जो है गोवा में लैंड करने के पहले सब कुछ परफेक्ट चाहिए, राइट फ्रॉम द होटल टू द फूड दैट यू विल गेट इन द होटल, टू द वॉशरूम्स, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, वहां घूमने के लिए सब परफेक्ट चाहिए उन्हें। इसके लिए अभी भी हम गोवा जा ही रहे हैं या गोवा जाने का डिसीजन ही ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, these people have a very strong belief that if they don't do things perfectly, they will never get an appreciation, they will never ever get an appreciation, and if they don't get an appreciation, they will feel that they are a worthless person. तो ये क्यों परफेक्टली हर चीज करना चाहते हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि जब भी मैं वो चीज करूं तो सब लोग मुझे अप्रिशिएट करें। अगर मुझे अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे तो मैं वर्थलेस हूं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, hope all of you have now understood how being a perfectionist deprives people from grabbing all the opportunities. Have you all understood that? If you have understood it, please open the chat window and let me know to proceed further, guys. Super, fabulous. Okay. जैसा मैंने कहा, मेरी एक और दोस्त है, उसको भी थोड़ी हेल्प चाहिए, तो चलिए देखते हैं उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं हम। तो ये है मेरी दोस्त श्रुतिका। ठीक है, तो श्रुतिका की मम्मी ने एक बार उसको कॉल किया। श्रुतिका मॉम कॉल्स हर अप टू से दैट द इलेक्ट्रिसिटी एट देयर हाउस हैज बीन कट ऑफ and that they were charged a late payment fee. When asked Shrutika why she did not make the payment, she says that she was going to pay it only on the final day. श्रुतिका की मम्मी ने एक दिन श्रुतिका को कॉल किया, पता नहीं घूमने गई थी किधर, उसकी मम्मी ने कॉल कर दिया, कॉल किया और बोला कि घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई है। ठीक है, और अब तो वो लेट पेमेंट भी मांग रहे हैं। तो जब पूछा कि भैया तुमने पेमेंट क्यों नहीं किया, तो श्रुतिका ने बोला मैं तो भैया पे करने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि ड्यू डेट पे ही पे करती हूँ। क्या लगता है आपको क्यों ये श्रुतिका के साथ हुआ होगा? मुझे आपकी ओपिनियन चाहिए। ठीक है, ये ऐसा हुआ बिकॉज श्रुतिका's mom forgot to remind her to pay the bill, or because Shrutika always loves to delay her work and plans to do it on the final day and not before that.
तो मैं ये ओपिनियन पोल ओपन करता हूं और आपको देता हूं 1 मिनट, सॉरी 2 मिनट। आप प्लीज मुझे बताइए कि ऐसा क्या है, आपका ओपिनियन क्यों लगता है आपको श्रुतिका ने ऐसा क्यों किया होगा। एंड हियर इट कम्स। Thank you. I can see a lot of people already starting to give their opinions. I've already got 40 people who have given their opinions. Brilliant, guys. Okay, let's wait for some more before we go ahead. Super. Fabulous. Excellent. Thank you so much, people. Great to see that, you are also of the opinion that Shrutika हमेशा अपना काम delay करती है. She always delays her work and plans to do it on the final day and not before that. Okay. The reason I was asking about Shrutika, okay, is because just like Shrutika, many of us delay our work or delay that particular activity which can actually be done then and there. तो वहीं के वहीं हम खत्म कर सकते हो उस एक्टिविटी को, हमें डिले करने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं, लेट अस लुक एट अ फ्यू थिंग्स दैट पीपल लाइक श्रुतिका डू। ओके, क्या है वो चीजें जो वो करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, ठीक है, someday or tomorrow I will exercise, someday or tomorrow, yeah, I want to start workout, man, I want to start that, but I don't know, someday I will start। ठीक है, डेलीगेट। ठीक है, व्हाट इज डेलीगेट? डेलीगेट मतलब अपना काम जो है, अपना जो काम है या हमारा जो काम है वो दूसरों के साथ शेयर करना। कुछ काम हम करें, कुछ काम किसी और को बोले ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए, तो डेलीगेट गाइस। ओके, जिस दिन मुझे 100% गारंटी होगी ना कि मैं जब शेयर करूंगा ये काम किसी के साथ तो ये काम वो लोग परफेक्ट करेंगे, उसी दिन मैं डेलीगेट करूंगा, आज नहीं करूंगा। ठीक है, स्टडी फर्दर, आगे भी पढ़ाई करनी है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आज करूं या कल करूं, समझ में नहीं आता, इसके लिए हम इसको डिले कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग, ठीक है, किसी दिन, कभी किसी दिन जब सब कुछ जीवन में आइडियल होगा, यू नो बाहर धूप नहीं होगी, कोरोना वायरस खत्म हो गया होगा, उस दिन मैं कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करूंगा, आज नहीं करूंगा। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी सिस्टर है, शादीशुदा है। बीच में हम जब फोन पे बात कर रहे थे, तब बातों बातों में जब हमारा डिस्कशन निकला और मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे मैं एक वेबिनार कर रहा हूँ जिसमें ये टॉपिक है, तो उसने मुझे बताया कि श्रीनिवास, मेरी भी बहुत इच्छा थी, व्हेन आई गॉट मैरिड, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं एक बिजनेस करूँ, पर फिर मुझे बेटी हो गई, एक बेटा हो गया, और फिर ये सब डिले हो गया, और अब तो वो दोनों बड़े हो गए हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि फिर मैंने सोचा कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब जाके मैं बिजनेस करूँगी। तो दोस्तों, मेरी बहन को रुकने की जरूरत नहीं थी।
I'm sure she could have started, but she did not. She preferred her kids over her own life. ठीक है, बस आज नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन आज हम नहीं करेंगे। ये बिलीफ होती है टुडे इज टुमारो की जो हैबिट होती है, आज कल है, इसकी जो हैबिट होती है, उनकी ये बिलीफ होती है दोस्तों। उनको हमेशा ये लगता है कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, लेकिन आज नहीं करूंगा, क्योंकि उनको गारंटी भी चाहिए होती है हर चीज की। ठीक है, तो होप दैट यू हैव नाउ अंडरस्टूड द हैबिट ऑफ टुडे इज टुमारो। आज कल है, ये जो हैबिट है, मैं उम्मीद करता हूँ आप पूरी तरह से इस हैबिट को समझ गए हो। ठीक है, अगर आप समझ गए हो तो प्लीज चैट विंडो में जाइए और मुझे बताइए, ताकि हम आगे बढ़ सके दोस्तों। सुपर सुपर, वेरी नाइस। ठीक है, सो इन शॉर्ट गाइज, इफ आई हैव टू टेल यू इन शॉर्ट, ठीक है, ये जो दो हैबिट्स है, ठीक है, बीइंग अ परफेक्शनिस्ट और टुडे इज टुमारो, ठीक है, ये इंटर रिलेटेड है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, और इनका काम एक ही है। इनका काम है हमारे जीवन में जो भी मौके आते हैं, जो भी अवसर आते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी आते हैं, उसे हम पोस्टपोन करें। यही इन हैबिट्स का फाइनल आउटपुट होता है दोस्तों। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि इसे बदले कैसे। ठीक है, तो इसके पहले के आगे बढ़े, मेरा एक और दोस्त है, ठीक है, वो हमसे मदद मांग रहा है, उसको हमारी ओपिनियन चाहिए। तो चलिए पहले वो क्वेश्चन देखते हैं कि मेरे दोस्त को क्या प्रॉब्लम है, और हम उसको और हमारी क्या ओपिनियन होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो ये है मेरे दोस्त समीर। After Samir attended a 5-day program, he was asked to train some students on the same program, same 5-day program. Samir kept delaying the training as he had not completed reading the entire textbook that was given to him. And because of this, he lost the training opportunity. समीर ने एक 5-डे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था, एक कंपनी में काम करता है, कंपनी ने उसको 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए भेजा। जब वो वापस आया तब उससे बोला कि यही सेम ट्रेनिंग 5 दिन की तुझे अपने स्टूडेंट्स के साथ करनी है। तो समीर बस डिले करता गया वो ट्रेनिंग, उसने पूरी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी थी, वो डिले करता गया। ठीक है, इसकी वजह से हुआ ये कि उन लोगों ने बोल दिया कि भाई समीर तुम अब ये ट्रेनिंग नहीं कर सकते, और ये ट्रेनिंग किसी और को दे दिया। So do you think that Samir actually needed to read 100% of the book and then start the training? Yeah. So yes, he needed to read the entire book. और the other opinion that I, मेरे पास ये दो ओपिनियन थे, बट मुझे आपका ओपिनियन चाहिए। The other opinion is no, he could have started even if he had finished reading 75% of the book. देखो दोस्तों, उसने ट्रेनिंग तो अटेंड कर लिया था, तो उसको पता तो था कि प्रोग्राम क्या है। तो क्या उसे सारी बुक पढ़ के ट्रेनिंग अटेंड करनी थी, या सिर्फ 75% बुक पढ़ के भी वो ट्रेनिंग अटेंड कर सकता था? तो मैं आपको भेज रहा हूं ये क्वेश्चन, जिसका मुझे आप जवाब दीजिए। और लेकिन इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैं आपको सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। क्या बात है, ऑलरेडी 60% लोगों ने आंसर दे भी दिया है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है।
Excellent. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you very much for giving your opinion. And I'm glad that you all, most of you suggested that Samir can start the training even if he's read 75% of the book. Thank you so much, guys. Okay, now comes the biggest question. You know, how do you think that all of us can change our habit? Or what needs to be done to change our habits, guys? Yeah. So what I'll do is I'll quickly move ahead and we'll have a discussion on that. Okay. Just give me 1 second. Yeah. So what's the mantra to change the habits? Yeah. This is the golden mantra, guys. This is the one that can help you to take things further. The 75% opportunity mantra. Let me quickly explain what this mantra is all about. इस मंत्र को बोलते हैं 75% opportunity mantra. Yeah. So what the mantra says in simple words is, if you attempt anything with an aim that it will be 100% perfect. Yeah. If you attempt anything, something like making tea for your family, start renovating your house, or make a business proposal with an aim to achieve 100%. Okay, with an aim to be perfect. Okay, your actions are going to only yield 75% results. ठीक है, सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं आपको. आप एक नया बिजनेस प्रपोजल लिख रहे हो. ठीक है, आपको अपने क्लाइंट को पेश करना है. ठीक है, अगर आप ये सोच के बैठोगे कि मैं जब तक मेरे हिसाब से ये प्रपोजल 100% परफेक्ट नहीं है तब तक मैं क्लाइंट को लेके जाके दिखाऊंगा ही नहीं. और एक दिन ऐसा आता है कि आप 100% परफेक्ट, आपके हिसाब से, आपके दिमाग में जो मॉडल है उस हिसाब से आपने उसको 100% परफेक्ट बनाया है, और जब आप उसको क्लाइंट के पास लेके जाके पेश करते हो तो उसका जो आउटपुट आता है वो एक्चुअली 100% परफेक्ट नहीं होता, वो 75% ही आउटपुट आता है. क्योंकि आपके क्लाइंट्स जो होते हैं वो आपको कुछ ना कुछ सजेशन देते हैं कि भैया इसमें ऐसे चेंज करो, इसमें ये करो, इसमें वो करो. तो जो आपका 100% परफेक्ट मॉडल होता है उसका एक्चुअल रिजल्ट 100 नहीं आया दोस्तों, उसका एक्चुअल रिजल्ट 75 ही आता है. सो माय पॉइंट इज, व्हाई एम एट 100% when you can begin with 75% and get the rest of the 25% done from the ecosystem. Ecosystem क्या है मैं आपको बताऊंगा. Therefore, let us not aim to start everything at 100%, guys. Yeah, let us not aim to start everything when 100% is ready. Let us start with 75%. 75% से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, जो बाकी का 25% होता है, जो बाकी का 25% है, लेट अस गेट इनपुट्स फ्रॉम द पीपल हु आर अराउंड अस. अगर आप बिजनेस में है तो बाकी के 25% का इनपुट आप अपने एम्प्लॉय से लीजिए. अगर आप घर पे है, आपको कोई थॉट है या आपको कोई चीज चालू करनी है तो बाकी के 25% का इनपुट आप अपने घर वालों से लीजिए. अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, वो 100% एक दिन परफेक्ट हो जाएगा. जी हाँ, वो एक दिन 100% परफेक्ट हो ही जाएगा. देखिए, क्रिकेटर्स भी जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो शुरू करते हैं तब वो 100% परफेक्ट नहीं होते, पर वो ये कभी नहीं बोलते कि मैं मैच नहीं खेलूंगा. वो ये कभी डर के घर पे नहीं बैठते कि अगर मैंने ये शॉट ऐसे मार दिया और मैं आउट हो गया तो लोग मेरे पे हंसेंगे. तो जब तक ये शॉट को मैं 100% प्रैक्टिस करके परफेक्ट ना कर लूं तब तक मैं मैदान में नहीं उतरूंगा. वो ऐसे कभी नहीं बोलते हैं. वो क्या करते हैं, 75% से चालू करते हैं, आगे जाते हैं और अपना जो भी गेम है उसको एक एक दिन करके इम्प्रूव करते हैं. अब वो इम्प्रूव कैसे करते हैं, क्योंकि उनको लोग इनपुट्स देते हैं, क्योंकि उनको लोग बताते हैं कि भैया तेरा ये शॉट ऐसे नहीं जा रहा, तू एक काम करना, तू ना इसको ऐसे खेलना. तो ये क्या हो गया, इनिशियल तैयारी उस क्रिकेटर ने की जो उसका 75% इनपुट हो गया, और जो बाकी का 25% था वो आजू बाजू के उसके जो कोच थे, उसके जो चाहने वाले थे, उसके जो भाई बहन थे, उसके जो दोस्त थे, उन्होंने अपना अपना इनपुट उसमें दिया. ठीक है, तो हुआ ये कि उसका 75% उसने लगाया, बाकी के जो 25% है उसमें सबने अपना अपना 75% दिया. बाकी के जो 25% है
उसमें सबने अपना अपना 25-75% डाल के उस क्रिकेटर को उस शॉट में, उस गेम में 100% इंप्रूव करके परफेक्ट बनाने का काम उन्होंने किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, it is very important that we all know that 75% is the point from where we can start. Okay, so let us try and understand this in a much better way, guys. Okay, let us try and understand this in a much better way. But before we go ahead and understand this or deep dive into this, I want a quick confirmation from all of you. Did all of us understand the 75% opportunity mantra? If your answer is yes, please open the chat window and tell me. Awesome. Beautiful. Now that we know this, let us build this. Okay. And let us look at 7 elements that will help us to make ourselves more stronger and move from the current state that we are to a state which is optimistic forever, which is positive forever. अब देखते हैं वो 7 एलिमेंट्स, वो 7 चीजें जिनकी मैं शुरुआत में बात कर रहा था, जो आपको लेके जा सकती है एक ऐसे मुकाम पे जहां पे आपके आजू बाजू में जो भी मौके होंगे आप उनको एकदम आसानी से ग्रैब कर पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहली चीज, गेट स्टार्टेड इमीडिएटली। ठीक है, रुकना नहीं है दोस्तों, शुरू करना है, तुरंत शुरू करना है, रुकिए मत। अगर आप रुक गए तो आप रुके ही रहोगे। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसमें जो 3 कैरेक्टर है, रैंचो, फरहान और राजू, उसमें से जो फरहान है वो हमेशा अपने बैग में एक लेटर लेके घूमता रहता है, लेकिन वो कभी वो लेटर पोस्ट नहीं करता है, इस डर से कि मैं पोस्ट कर दूंगा और अगर वहां से मेरे को ऑफर आ गई तो मेरे फादर मुझे वहां जाने नहीं देंगे। रैंचो क्या करता है, जिस दिन रैंचो को पता चलता है वो बस लेटर पोस्ट कर देता है। जब वो लेटर, उस लेटर का जब रिप्लाई आता है उसके बाद जो होता है वो तो आपने मूवी में देखा ही है। तो दोस्तों गेट स्टार्टेड, शुरू कर दीजिए, रुकिए मत। मैं तो बोलता हूं आज जब ये सेशन वेबिनार हम खत्म करेंगे उसके बाद अपना एक पेन निकालिए, एक पेपर निकालिए और वो सारी अपॉर्चुनिटीज, वो सारे बिजनेस प्रपोजल्स, वो जो भी है वो निकालिए, पेन डाउन कीजिए और मैं तो बोलता हूँ शुरू कर दीजिए 75% से। बाकी के 25% का इनपुट आपको ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा आजू बाजू से। ठीक है, तो ये हुआ मेरा पहला एलिमेंट। लेट्स लुक एट द सेकेंड एलिमेंट नाउ, फोकस ऑन योर 75%। ठीक है, देखिए जब आपकी मम्मी या आपकी वाइफ कोई डिश बनाती है और आप खाते हो, ठीक है, जब आप खाते हो तो आप बोलते हो क्या परफेक्ट डिश बनाई यार, एक नंबर डिश है एकदम। लेकिन आपकी वाइफ या आपकी मम्मी को ही पता होता है कि उन्होंने जो एफर्ट डाला है वो 75% ही था। तो हमारा 75% सिर्फ हमें पता होता है कि वो 75% है, वो 75% है, सामने वाले को नहीं पता होता। आप तो जो भी पेश करोगे सामने वाले को तो वो 100% ही लगेगा। ठीक है, तो अपने 75% पे फोकस कीजिए दोस्तों, अपने 75% पे। थोड़ा आगे जाते हैं, बी अवेयर एंड अलर्ट ऑफ योर हैबिट्स। देखो आदतें जो है ना, इनको बिगड़ने में आदत मतलब टाइम नहीं लगता दोस्तों, लेकिन अच्छी आदतें लगाने में बहुत टाइम लगता है। तो आप अलर्ट रहिए, हमेशा अलर्ट रहिए एंड अवॉइड दोस 2 हैबिट्स। ये जो 2 हैबिट्स है, ये जो 2 आदतें हैं, परफेक्शनिज्म की, टुडे इज टुमारो की, ठीक है, इनको जितना अपने से दूर रखोगे उतना तुम्हारे लिए बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज 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 बी केयरफुल ऑफ योर हैबिट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिल्ड अ टीम। ठीक है, बहुत जरूरी है कि जो भी हम काम करें वो टीम वर्क में करें। जब जब मैं बोलता हूं बिल्ड अ टीम, तो सबसे पहले टीम मतलब क्या देखते हैं। टीम मतलब टुगेदर, टी टुगेदर, ई एवरीवन, ए अचीव्स, एम मोर, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल, अगर घर में शादी है, फॉर एग्जांपल आपके भाई बहन किसी रिश्तेदार की शादी है, तो क्या होता है, हम लोग टीम वर्क में ही काम करते हैं। उस लड़की या उस लड़के के माता पिता या वो लड़का या लड़की खुद
क्या अकेले सारा इंतजाम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके लिए एक टीम में रहना जरूरी है। सिमिलरली अगर आप बिजनेस में है या आप नौकरी करते हैं, ठीक है, तो अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको टीम में काम करना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं। पिछले हफ्ते ही मैंने और हमारे जो टीम के मेंबर्स हैं, अभिषेक और आकाश, हम मैंने एक ख्याल पेश किया उनको कि मुझे लग रहा है कि ऐसे हमें कुछ करना चाहिए करके। तो मेरा 75% वहां हो गया, ख्याल पेश करके मेरा 75% हो गया। लेकिन मेरे 75% पे जब आकाश और अभिषेक ने अपने अपने इनपुट्स दिए 75-75% वाले, तो तब वो जो बाकी का 25% हो गया वो पूरा हो गया। और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए बिल्ड टीम, टीम में काम करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास अब टीम नहीं है तो आप बिल्ड कीजिए उसको। घर में है तो आप एक टीम वर्क के साथ काम कीजिए, मम्मी के साथ टीम कीजिए, डैडी को टीम में इन्वॉल्व कीजिए, भाई बहनों को टीम में इन्वॉल्व कीजिए दोस्तों। ठीक है, आगे जाते हैं और ये वाला देखते हैं। ये वाला एलिमेंट बहुत बढ़िया है, आइडेंटिफाई यूनिक स्ट्रेंथ। दोस्तों सबके पास एक यूनिक स्ट्रेंथ होती है, सबका अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। ठीक है, क्रिकेट की अगर बात करें तो अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो सौरव गांगुली वाज कॉल्ड द गॉड ऑफ ऑफ साइड। क्रिकेट में ऑफ और लेग साइड करके होता है, तो सौरव गांगुली वाज कॉल्ड द गॉड ऑफ ऑफ साइड। उसकी वो यूनिक स्ट्रेंथ है, मतलब अगर उसके ऑफ स्टंप पे आप गेंद डालोगे तो वो डेफिनेटली चौका मारेगा, ये उसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ सौरव गांगुली ऑफ साइड का गॉड होने से इंडिया जीत नहीं पाती थी हर बार। तो ये जो स्ट्रॉन्ग है सौरव गांगुली का, जो ऑफ साइड स्ट्रॉन्ग है, ये उसका 75% कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इंडियन सक्सेस। बाकी का जो 25% है वो बाकी के टीम मेंबर्स मिला के कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ अंडरस्टैंड कीजिए और जो उस स्ट्रेंथ में माहिर है, ठीक है, उनकी हेल्प लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास एक बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ है कि आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ हो गई। अगर आपके कंपनी में कोई भी ऐसा टॉक देना है, कोई भी ऐसा स्पीच देना है, ठीक है, तो आप सामने से जाके बताइए कि भैया मैं बढ़िया बात कर सकता हूँ। वहां पे जो भी टॉक देना या स्पीच देना है उसका 75% काम ऑलरेडी हो गया है, क्योंकि आपने बता दिया है कि आपकी ये यूनिक स्ट्रेंथ है और बाकी लोगों को भी पता है। अब बचता है बाकी का 25%। तो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स इन्वॉल्व करने हैं, ये सारा जो 25% है ये आपके बाकी के जो टीम मेंबर्स है ये आपको अपने अपने 75% में से आपको दे देंगे, तो हो जाएगा ये टोटल 100% दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला एलिमेंट क्या है। डेवलप अ टीम प्लेयर माइंडसेट। ठीक है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट वी डेवलप अ टीम प्लेयर माइंडसेट। ठीक है, क्या है ये टीम प्लेयर माइंडसेट? तो इन शॉर्ट अगर आपको जानना है तो हम सबको अपना अपना 75% देना है। जितनी जल्दी और जितने फास्ट हम अपना अपना 75% देंगे, उतना फास्ट सब लोग अपना अपना 75% दे पाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो आउटपुट है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो फास्ट पेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है, अब अगर ये ख्याल मैं अपने पास ही रखूंगा ना, तो शायद जो मुझे करना है वो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे को वो परफेक्शनिज्म वाली जो आदत है वो अचानक मेरे दिमाग में आ गई है। ठीक है, लेकिन इस वेबिनार के बाद अगर वो ख्याल मैं अपने टीम मेंबर्स के साथ पेश करूंगा ना दोस्तों, तो मेरा 75% काम हो गया। अब बाकी के जो मेरे लोग, टीम के लोग हैं, वो अपना अपना 75% डालेंगे। इससे क्या होगा, जो ख्याल है मेरे दिमाग में, उस ख्याल को हम लोग एक फिनिश फिनिश प्रोडक्ट फटाफट बना सकते हैं। तो एक ख्याल लो, 75% डालो, टीम को बुलाओ, उनका 75-75% डलवाओ, फिनिश प्रोडक्ट करो, उसको मार्केट में उतार दो। और एक ख्याल लो, उसको भी डालो, मार्केट में उतार दो। और एक ख्याल लो, अपना जो पेस है वो एकदम फास्ट हो जाएगा और अपने जो आइडियाज है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो डेवलप अ टीम प्लेयर माइंडसेट बहुत बहुत जरूरी है ये। एंड द नेक्स्ट वन, बिकम अ पायनियर। बिकम अ पायनियर, बी द फर्स्ट वन। यू क्योंकि आपके पास वो आइडिया था और आपने अपना 75% डाला, तो हुआ ये कि वो आइडिया मार्केट में उतर गया और वो जो है वो किसी दूसरे ने नहीं किया है।
So you become the pioneer for that one. Okay. A simple example, a very famous company today, housing.com. Some time back when it started, it was called as housingforall.com. Okay. This is a company that changed the entire process of buying and selling houses by taking real estate to a digital platform. जब हाउसिंग फॉर ऑल डॉट कॉम मार्केट में आई, उसके पहले किसी ने ये नहीं सोचा था कि घर खरीदना, घर बेचना, घर के बारे में डिस्कस, घर के बारे में देखना, ये करना, ये ऑनलाइन होगा। घर बैठे बैठे हम एक ऐप के द्वारा घर देख सकते हैं, घर बाय कर सकते हैं, घर सेल कर सकते हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ था। हाउसिंग फॉर ऑल डॉट कॉम बिकेम द पायनियर इन ऑनलाइन रियल एस्टेट इंडस्ट्री. So that is what I want all of you to become, guys. I want you to keep flowing your ideas. I want you to keep involving your team players so that you become pioneers in your industry, guys. Okay. And I want you to leave with a very beautiful thought, guys. Okay. This is a thought from Mr. T.T. Rangarajan. For all you don't know who Mr. T.T. Rangarajan is a visionary author and a spiritual leader. Very famous for his book Most and More. Yeah, I request that you go back and read this book, guys. Awesome book, awesome. Okay. So whatever he has written here is something that I will explain in the most simple words. He says that if you don't need, he says that you don't need to be perfect. ठीक है, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, यू कैन गेट रिजल्ट्स इवन इफ यू आर इम्परफेक्ट. यस, यू कैन गेट रिजल्ट्स इवन इफ यू आर इम्परफेक्ट. ठीक है, द टाइम you put to improve these imperfect things will eventually lead you to perfection. सेम मुद्दा है दोस्तों, अपना 75% दीजिए. अगर आप इम्परफेक्ट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ कोई परफेक्ट नहीं है दोस्तों, कोई भी परफेक्ट नहीं है दोस्तों. तो अगेन गेट स्टार्टेड, चालू कर दीजिए, गाड़ी आगे बढ़ाइए दोस्तों. Finally, my dear friends, don't wait, because practice makes man perfect. Practice makes man perfect. ठीक है, this is not the end, my friends. Yeah, we have a long journey to build valuable skills to cope up with the current situation and come out strong out of this. कम आउट स्ट्रॉन्ग. आज हमने जाना कि हमारी अपॉर्चुनिटीज को कैसे हम ग्रैब करें, हाउ वी एंश्योर दैट वी आर अलर्ट एंड नॉट लुक एट और नॉट गेट दोस टू हैबिट्स इनकॉर्पोरेटेड इन अस. इनफैक्ट उन हैबिट्स को हमें दूर भगाना है दोस्तों. ठीक है, our next session, which is a continuation of this thought process that we are having, is going to be at the same time on Wednesday for you guys. It's going to be on the same time on Wednesday for you guys. Details of this particular webinar will be sent to you on an email. Okay. For those who prefer personalized one-on-one guidance, we have a mentorship program as well for you guys. Okay. This is customized with the aim to bring out the best in you, as we understand that you would definitely have questions or thoughts pertaining to your own self, your family, your business, something that you want to take up one-on-one. So that's where we have the mentorship program. Feel free to reach out to us for any such queries that you have on the details that are mentioned on the screen, guys. Yeah. Before I open for questions, on behalf of Skillifant, I wish to thank all you participants for taking your time out from your busy schedule and attending this webinar. We at Skillifant hope that you enjoyed this as much as we enjoyed creating this for you. Please stay safe, stay healthy, and follow us. Okay, keep learning with us. What we will do is we will email you
a feedback link. So do share your feedback, guys. It's very valuable. In fact, we've tried our best to incorporate all the feedback that we received from the previous or the last webinar. Okay? This feedback actually helps us to improve every now and then, guys. Yeah, it helps us to build a better learning experience. Do share this with your friends and family and colleagues. Help us to spread the knowledge, my friends, and not the virus. Help us to spread knowledge and not the virus. Okay. I would now like to answer any questions that you may have about today's webinar, guys. Okay. We have approximately half an hour left. So please send in your questions on the chat window. Okay, I can see a few questions flowing. Let me just make a note of them. Just making a note of your questions, guys. Thank you, Nahid. Thank you very much, my friend, for your appreciation here. Okay. Okay, I'll wait for another 30 seconds. And what I will do is I will start answering the questions that I have already received here. Okay. I have received some questions here right now. So I'll give it another 30 seconds and then I will start answering them. Okay, I have another question. Let me make a note of it. Yeah, thank you, Sattar, for your appreciation. Okay, I think I'll just take two more, or yeah, yes, keep them flowing. How do? Okay, Mahesh ji has asked a question. I will definitely answer this, Mahesh ji. Okay, great. So let me begin by answering the questions that I have received. Okay. Okay, so let me take a question first. It says, what skills can be learned here? Okay, what skills can be learned here? Okay, if this question is pertaining about what skills can you learn with Skillifant, so we will ensure that whatever is something that is your requirement, you can always email that to us at the email address that you can see, and we will then be able to help you to ensure that whatever skills you want to learn can definitely be learned in the best of your and to the best of your ability. uh,
How this will be useful? Okay, this will definitely be useful. Okay, the whole point is that there are a lot of things that we do not do because we have a fear in mind. That how will that pan out? How will that come ahead? How will that look? Don't think about any of these things, because the moment you start thinking about these things, you are actually cultivating that habit of being a perfectionist. So don't think about these things. I know there will be thoughts which will be incomplete. Let them flow. Discuss it with someone. When you discuss it with someone, the thought doesn't remain a thought. It goes ahead. Yeah. So discuss it and then see the magic of getting that thought implemented. And the success that you will get out of that discussion is something that you will really really enjoy. Yeah. So I have a question which says, in this lockdown, everywhere there is a lot of negativity, irritating environment. Something suddenly happens, and we are focused to make and the situation is irritated approximately 100 times. I have opened my study book. Okay, great. Uh, Something very simple, guys. Okay, there will be a lot of things that will be happening around us. Now, the just remember one thing. Okay, whatever is happening right now in the current situation, the coronavirus, the COVID-19 situation, it's not in our control. It's not in our control. We can't do anything for that. Okay. However, whatever is there in our control is, or things that are there in our control is to focus on whatever is available for us. See, it's very important that our career is the most important thing for us. Yeah. These kind of things will keep happening. Today it is something like COVID-19. We don't know, going forward, there will be something else. Does it mean that if we have uh, if we keep thinking about what's going to happen and let the external factors affect us from stopping to grab the opportunities, I think that will be incorrect, my friend. So don't focus on what is happening outside. Just focus on what is important for you. Again, as I said, whatever is happening outside will keep happening and we don't have control over that. But what do we have control over? We have control over ourselves, our career, our life, our family, our friends. So let's focus on that. Prioritize. Keep things clear for you. You know, um, Write it down somewhere. Then look at what is important for you. I'm sure if I'm sure if you attend our next webinar as well, this is something that we are going to talk in much more detail. Okay, but what I can tell you at this point in time, my friend, is just focus on what is important for you. Do not focus on things that are outside, things that are external factors. I know it's very easy for me to sit here in this nice little cozy room and say that do not focus, but the whole point is that it is a decision that we have to make, and the other person can only tell us how to make that decision, but the decision has to be made by us. Yeah. So my suggestion to you is knowingly make that decision. Attend our next webinar, which is where we will talk about how to make sure that you prioritize your tasks, and how to make sure that you utilize your time in the best possible way. Okay, let me just take another question here. How do we know if a missed opportunity was because of waiting for 100% or because of a guarantee for 100%? Both are very similar. You're absolutely right, sir. Actually, they are interrelated. A person who delays to take a decision is only because there is a 100% perfect model in his or her brain. And till the time things are not reaching that 100% model, this person is not going to take a decision and implement his thought. Now it's interrelated. See this, decision making delayed because the model is not 100% perfect. Because the model is not 100% perfect, whatever he could do tomorrow is delaying it for sorry whatever he I'm so sorry whatever he could do today is actually delaying it for tomorrow. Yeah. However, if he can just start with 75%, things will be brilliant for him. That 100% will automatically be achieved in the near future.
Yeah. So yes, you are right. You know, they are interrelated. Yeah. Because what happens is when I delay something, I need 100% guarantee that yes, you know, if I do this, this will be successful. Now, when is it successful? When I know that it is 100% correct. Okay. Now the problem is if I wait and then I put that particular thing or I implement that thing, but if I get a result that you know this is not 100%, it actually disappoints me. So why wait for 100% when you can aim for 75% and go ahead? Okay. I'm glad that I was able to answer. I just have a few more questions. Let me quickly go to them. Guys, you'll have to give me a minute. There seems to be some technical issue. So just give me a minute. I'll be back in a minute. Okay. Thank you so much for waiting, guys. Is everybody able to hear me properly? If you are, just quickly go on the chat window and say yes. Thank you very much. Thank you. So I have a question here, which says how to cope up with the lack of business. You know, uh, thank you, people. Okay. Uh, with how to cope up with the lack of business, guys. We know that now that we know how to develop an infinite mindset, we also need to identify if we have any or both of these habits that we've discussed, guys. Yeah. The moment we identify, that will help us to understand whether we are not able to cope up with lack of business because of these habits. Because opportunities are abundant, my friends. Opportunities are abundant in the market. All you have to do is just open your eyes and start grabbing the opportunities. Yeah. Identify what are your opportunities, and apply the mantra, the 75% opportunity mantra, and implement it by practicing the first element that we discussed, getting started. Guys, lack of business, that cannot be a possibility in today's world, guys. There are abundant opportunities, there are huge business opportunities. All we have to do is identify, get rid of that habit if we have that habit, put the 75% opportunity mantra in place, start practicing the element which is getting started. जो भी आइडिया है, जो भी थॉट्स है, चालू कर दो. ठीक है, चालू कर दो, डिस्कस करो अपनी टीम के साथ. आपको वो डेफिनेटली ग्रैंड सक्सेस दिलाएगा. और जब आपको ये फंडा समझ में आएगा, तब आपके पास हमेशा बिजनेस होगा. Okay, I have another question. Just give me a minute and I will answer your question. Okay. Uh, so yeah, get started. Okay. The next question that I have is, how to approach someone who has already rejected your proposal. A person with an infinite mindset would take rejection as an opportunity. There could be various reasons for rejection, guys. It's very important. Rejection. अगर मेरा प्रपोजल किसी ने रिजेक्ट किया है, तो मैं कैसे उन्हें अप्रोच करूं? तो जो खुली सोच वाले होते हैं, जो ओपन माइंड वाले होते हैं, जो इनफाइनाइट माइंडसेट वाले होते हैं, वो रिजेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, दोस्तों. एंड देयर कुड बी वेरियस रीजंस फॉर रिजेक्शन. आपका प्रपोजल जो सामने वाले पार्टी ने रिजेक्ट किया, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द अदर पार्टी एंड अंडरस्टैंड द रीजन. बहुत सारी बार ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत सारी बार ऐसा होता था कि जब मैं कोई प्रपोजल लेके जाऊँ और कोई रिजेक्ट करता था, तो मैं उनको जाके पूछता भी नहीं था कि आपने रिजेक्ट क्यों किया. ठीक है. तो ये बहुत जरूरी है कि हम उनसे जाके बात करें कि भैया किस रीजन की वजह से आपने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया. जब आपको सामने वाली पार्टी बताएगी कि ये रीजन से मैंने रिजेक्ट किया है या वो रीजन से मैंने रिजेक्ट किया है, तब आप उस रीजन को लेके जाके अपना जितना भी आपका टीम है, उनके साथ बैठ के काम करके आप उस रीजन को ओवरकम कर सकते हैं. यू कैन वर्क बैक विथ योर टीम and identify all the lost opportunities in the first instance which led to rejection of your proposal. Take inputs from your team for more requirements, for more improvements and perspectives, guys. और इसमें एक चीज आपको और करना है, list down any further possible rejection reasons that can come and make a list of, if they say this is the reason I'm rejecting it,
हाउ डू यू एंश्योर दैट यू ओवरकम दैट रीजन? तो आपके पास उसका प्लान भी हमेशा रेडी होना चाहिए। जो हमने पिछले वेबिनार में भी देखा था कि यू शुड हैव प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपके क्लाइंट ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया क्योंकि उसको लगा कि ये प्रपोजल या ये बिजनेस आइडिया आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है और उनके लिए कम प्रॉफिटेबल है, तो वापस जाइए एंड चेक द पॉइंट्स जो आपके प्रपोजल में थे, जो उनको सोचने पर मजबूर, जो जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि ये ज्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए क्यों है और उनके लिए क्यों नहीं है। इन पॉइंट्स को चेक कीजिए कि आपने प्रपोजल में क्या पॉइंट्स डाले थे, कैसे डाले थे, कैसे उन्हें प्रेजेंट किया था। आपके क्लाइंट के साथ डिस्कस कीजिए, उसके बाद आपकी टीम के साथ बात कीजिए, इस पे रीवर्क कीजिए और क्लाइंट को बताइए कि मुझे ये वापस प्रेजेंट करना है। आई एम श्योर आपका क्लाइंट डेफिनेटली आपको बोलेगा कि हाँ, मैं डेफिनेटली मुझे ये आपके साथ वापस डिस्कस करने में खुशी होगी। अगर आपके क्लाइंट ने ना बोल दिया या अगर आपके क्लाइंट ने बोला कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, तो दोस्तों इसे लर्निंग की तरह ले लीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ना हमारे कंट्रोल के बाहर होती है। हमारा एफर्ट हमारे कंट्रोल में होता है, आजू बाजू वालों का हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो हमारा एफर्ट जो है वो हमारा परफेक्ट होना चाहिए। किसी ने मुझे पूछा है अभी आप में से कि हाउ टू आइडेंटिफाई विच अपॉर्चुनिटी इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग। गाइस, देयर इज नो राइट और रॉन्ग। This is because you will never think of starting something that will not give you benefits. क्या आप कोई ऐसी चीज करना चालू करेंगे जिससे आपको नुकसान हो, घाटा हो, जिससे आपको बेनिफिट ना हो? Hence, it is of utmost importance to discuss any thought, idea or project that you have with the people around you. आपके आजू बाजू में जो भी लोग हैं, आप उनके साथ डिस्कस कीजिए आपका थॉट। ठीक है? जैसे जैसे कि इफ यू आर इन अ बिजनेस और वर्किंग इन अ कंपनी, you need to discuss these thoughts with your team members. If this is a thought pertaining to something related to your family or friends, involve them. Let them know what you're thinking. Because when you tell them what you're thinking, guys, you have already contributed 75%. Let them think and give their contribution. Always be open to analyze the thoughts presented in the discussion. जो भी thoughts, विचार जो भी आदान प्रदान होता है, उसको एनालाइज कीजिए। अपना 75% दीजिए, उनका 75% लीजिए उनसे। याद रखिए, जो एंड रिजल्ट होगा ना, वो हमेशा आपके लिए ग्रैंड सक्सेस होगा। ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने अपना थॉट पेश किया कि मुझे ये करना है, अगर आपको लगता है कि अगर आपके फैमिली मेंबर्स को लगता है या आपकी टीम को लगता है कि ये सही नहीं है या इसका आउटपुट सही नहीं होगा, वो अपने डिस्कशन में आपको बता देंगे। ऑटोमेटिकली आप उस दिशा में जाएंगे ही नहीं। ठीक है? लेकिन ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्हाट आई हैव सीन इज whenever we discuss ideas with people, the end result is always a grand success. ठीक है? टेक फीडबैक फ्रॉम पीपल हु मैटर। जो मैटर करते हैं उन लोगों से बात कीजिए, जो डिसीजन ले सकते हैं उन लोगों से बात कीजिए। या डोंट ओवरथिंक, खुद ज्यादा मत सोचिए, जस्ट गेट स्टार्टेड गाइस, जस्ट गेट स्टार्टेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है? एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है? ये सिचुएशन में बिजनेस करें या जॉब करें और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है? ये बड़ा क्रिटिकल सवाल है। इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जिनका थॉट प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, इकोनॉमी में चेंजेस तो होंगे। जो आज है वो वैसा शायद कल नहीं होगा। चीजों को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है? पॉइंट और मुद्दा ये है कि क्या है जो आपको हैप्पी बनाता है, क्या है जो आपको खुशी देता है। क्योंकि इंसान जब खुश रहता है, जब हैप्पी रहता है, जब पॉजिटिव मूड में रहता है, तो वो जो भी करता है उसका आउटपुट हमेशा बढ़िया ही आता है। आप अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आपके थॉट सही है, अगर आप हैप्पी हो, तो आप नौकरी भी करोगे तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप बिजनेस भी करोगे तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि आइडिया बहुत सिंपल है दोस्तों। अपॉर्चुनिटीज आपको बिजनेस में भी मिलेंगी, आपको नौकरी में भी मिलेगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू आइडेंटिफाई एंड ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज। ठीक है? सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ग्रैब देम। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो सब में होते हैं दोस्तों। ठीक है? अदरवाइज हमारी लाइफ ही नहीं होती।
अगर सब कुछ एडवांटेजियस होता तो शायद ये एक परफेक्ट वर्ल्ड होता, जो है नहीं फिलहाल। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, इंडस्ट्रीज देखोगे, आप मार्केट देखोगे, तो मेरा तो सजेशन ये है कि पहले आप देखिए कि आपको किस चीज में रुचि है, किस चीज क्या है जो आपको अच्छा लगता है, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, व्हाट इज इट दैट यू already have a mastery in, and what is it that you can build on. If that will lead to you doing a job, please go ahead and do a job, because you will be successful in that. If that leads to you being in business, because business is going to give you more results and more success out of it, please do a business, my friend. ठीक है. Last question that I had: how to balance professional and divine knowledge? स्पिरिचुअल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज को बैलेंस कैसे करें? देखो, जो स्पिरिचुअल नॉलेज होता है, दैट इज द आइडियल थिंग, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, दैट कम्स विथ एक्सपीरियंस. सो वी एज एन इंडिविजुअल नीड टू वर्क, नीड टू प्रैक्टिस, टू ब्लेंड बोथ, to ensure that the end result of both these knowledges that we have is a grand success for us. It's very, very important for us to blend, guys. You blend it, it becomes beautiful. If you don't blend it, you may not get the kind of success that you are aiming or hoping for. ठीक है. Right, so I hope I have answered all the questions to the best of my knowledge. And thank you very much once again, and hoping to see you all on Wednesday, same time, for the next webinar, which is how to enhance and maximize our productivity. Thank you very much, guys. Have a wonderful weekend. Stay happy, stay safe.